about the wedding feast. 1 से लेके 18 तक हम देखते हैं कि विवाह के बोझ के विषय में लिखा है. And then we see from verse 23 the scripture talking about all of a sudden about resurrection. और 23वें वचन में अचानक से जो है पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया In है. between these two parables, इन दो दृष्टांतों के बीच में we see here the scripture mentioned a small aspect of taxes, paying the taxes. इन दो दृष्टांतों के बीचों बीच एक और चीज है जिसमें टैक्स देने के विषय में लिखा है. If you look at verse 18, अगर हम 18वां वचन को Matthew देखें, chapter 22 verse 18, this is what the Bible says. मत्ती 22:18 को अगर हम And पढ़ें, Jesus perceived their wickedness and said, "Why do you test me, you hypocrites?" यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? You understanding? They're trying to test Jesus, asking, should we pay our taxes to Caesar or not? यहाँ पर यीशु की परीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं क्या हम कैसर को टैक्स देना है या नहीं देना है. See, the scripture, the parable above was talking about the wedding feast, यहाँ पर ऊपर जो है विवाह के बोझ के बारे में लिखा है and below it was talking about the resurrection. और नीचे की ओर जो है पुनरुत्थान के बारे में लिखा है. And all of a sudden, in between these stories, why did Bible mention about taxes? और इन दोनों के बीचों बीच बाइबल में क्यों लिखा गया है टैक्स के बारे में. And Jesus being tested here, और यहाँ पर यीशु को परखा जा रहा है asking whether we should give our taxes to Caesar or not. और लिखा है, पूछ रहे हैं कि क्या हम कैसर राजा को टैक्स देना है या नहीं देना है. And verse 18 says, Jesus perceived their wickedness और यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, and said to them, "Why do you test me, you hypocrites? Show me the tax money." हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ. So they brought him a denarius तब वे उसके पास एक दिनार ले आए. and said to them, उसने उनसे पूछा, and he said to them, Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, "Whose image is inscripted on that coin?" इस सिक्का पर किसकी मूरत बनी गई है? And they said to him, और उनने उससे कहा, "Caesar's." कैसर का. And he said to them, तब उसने उनसे कहा, Render therefore to the Caesars to what is Caesar's, and give to God what belongs to God. जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो. You understanding, church? आप समझ रहे हैं? I was struck here मैं इस बात पर अटक गया. and I started to ask questions. मैं प्रश्न पूछने लगा. And I have this habit of asking questions: why, what, where, when, and how. मेरे पास ये आदत है कि मैं पूछता हूँ क्यों, कैसे, कब, कहाँ. If there's a statement, if there's a scripture that I read, अगर मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, I ask these 5 questions: मैं इन 5 प्रश्नों को पूछता हूँ. why, what, where, when, and how. क्यों, कैसे, कब, कहाँ. And I asked it, Yes. and I kept asking these questions, and I discovered और मैं ये प्रश्न को पूछता रहा और मैं ये जान पाया. here the scripture says, वचन यूं लिखा है, "Give to Caesar the things that are Caesar's, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, and to God the things that are God's." जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को मतलब दो. परमेश्वर का वचन इधर हमें सिखाना चाहता है, जो संसार का है वो संसार को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो. You understanding, church? You understanding, church? If you look at scripture in Romans chapter 13 verses 1 and 2, रोमियो 13 1 और 2 अगर हम देखें, you know why we've been failing as the believers in the church today? आज हम विश्वासी होने के नाते कलीसिया के लोग क्यों हार रहे हैं? The reason is we've been mixing the things of the world with the things of God. हम जो है परमेश्वर और संसार की बातों को जो है मिक्स कर रहे हैं. You're bringing the culture of this world into the church. हम जो है संसार की तौर तरीके को कलीसिया में लेकर But आते we were हैं, supposed to take the culture of God to the world. जबकि हमें परमेश्वर के तरीके को हमें संसार में ले जाना था. हाँ या नहीं? Yes, so how many of you agree to this? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ या नहीं? क्या हम संसार की कल्चर को अंदर लाना है या परमेश्वर का कल्चर को बाहर लेकर जाना है? थोड़ा जोर से बोलिए ना. Yes. So but the church has been mixing the world and church. आज कलीसिया जो है संसार और कलीसिया दोनों घुल मिल गए हैं.
हाँ या नहीं? That is why we've इसीलिए been failing as a church in this world. इसीलिए एक कलीसिया होने के नाते आज कलीसिया हार रही है। आपको बताया आज संसार हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम कलीसिया बनकर नहीं रहा है, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर नहीं रहा है। We are not giving, we are not submitting to God which belongs to God. हम जो है उन चीजों को प्रभु को नहीं दे रहे हैं जो उसका है। If you look at Romans chapter 13 verse 1, रोमियो 13 अध्याय 1 वचन को अगर हम देखें, look what the Bible says. क्या लिखा है Let देखिए। every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। You understanding, church? आप समझ रहे हैं? Every authority that placed over our lives is placed by God. हर अधिकारी को जो हमारे ऊपर रखा गया है वो परमेश्वर ने ठहराया है। You understanding, church? आप समझ रहे हैं? Have you chose your parents? क्या आपने अपने माता पिता को चुना है? वोट डाल के चुना है या क्यों कोई दुकान में जाके चुना है? नहीं। कौन प्लेस किया आपका पेरेंट्स को? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। और वचन बोलते हैं that we have to submit to the authority that God placed over our life. और वचन यूं कहता है जो अधिकार को प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है उनके अधीन आ जाओ। Did you choose your pastor? क्या आपने अपने पास्टर को चुना? Did you choose your youth leader? क्या आपने अपने यूथ के लीडर को चुना? They are placed by God. उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आपने आपका स्कूल में क्लास में क्या आपका मॉनिटर को आपने चुना? क्या आपका काम के जगह आपका मैनेजर को चुना? They are placed by God for our benefit. उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ठहराया है हमारे लाभ के लिए। You understanding, church? You understanding, church? आप समझ रहे हैं? Our job is to submit. हमारा काम है कि हम अधीन आ जाए। हम परमेश्वर के अधीन में आना है, हम माता पिता के अधीन में आना है, हम परमेश्वर का दास का अधीन में आना है, हम हमारा लीडर्स का अधीन में आना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। You understanding, church? It is God who plays the authority over our lives. वो परमेश्वर है जो हमारे ऊपर अधिकार को ठहराते And if you हैं। look at the scripture in the second part, दूसरे भाग में अगर हम देखें, verse 2, दूसरा वचन, whoever therefore resists the authority, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है they resist God directly. वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। You understanding, church? They resist God directly and they are going to be judged. वो परमेश्वर का विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है अगर कोई अधिकारी के खिलाफ खड़ा होकर क्यों पूछा तो हम उसको जय जय करेंगे। यस, झुंड बनाकर अधिकारी के खिलाफ, यस, स्कूल में कॉलेज में टीचर के खिलाफ अगर एक लड़का खड़ा हो गया, पूरा कलीसिया उसके पूरा क्लास उसके पीछे, अरे मस्त बोला रे, मस्त बोला, सही बोला तू, सही पूछा है। यस, व्हाट्स हैपनिंग? वी आर गोइंग अगेंस्ट गॉड, डायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट गॉड। क्या हो रहा है? हम सीधा परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। You understanding, church? You understanding, church? Our job is to submit. हमारा काम है कि हम अधीन आ जाए। You know, we are focusing on teleos, हम जो है तेलियोस पे ध्यान दे रहे हैं, being complete, जहाँ पर लिखा है हमें संपूर्ण हो जाना है, being matured. हमें परिपक्व होना है। Mature and completion doesn't happen without submitting. आप परिपक्व और आप पूर्ण तब तक नहीं हो सकते जब आप प्रभु के अधीन में ना आ जाए। Submission is everything in the kingdom of God. प्रभु के अधीन आना ही स्वर्ग के राज्य में सब कुछ है। How many of you have confessed this scripture, Psalms chapter 91, all through lockdown? कितने लोगों ने लॉकडाउन के वक्त भजन संहिता 91 को बहुत कहा होगा? Yes. You've declared, you've confessed, you spoke over your life, your family. Yes. आपने अंगीकार किया, आपने घोषणा की अपने ऊपर, अपने परिवार पर। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कहूं? Psalms